Hi everyone, good morning, and today we are going to take one more passage for reading skills. And thank you so much for your love and support. Stay tuned with our channel. So let's begin with this passage. So here we go with the passage of the Hindu editorial. एंड आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद आ रही होगी. सबसे पहले आपको रीडिंग स्किल्स पे वर्क करना है, देन वोकेबलरी फाइंड आउट करना है, देन स्किमिंग करना है. स्किमिंग का क्या मीनिंग होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो फटाफट हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करिएगा एंड डू हिट लाइक बटन एंड शेयर इट इन योर सर्कल. Let's begin. Assuaging concerns on India and ethanol blended fuel. Vehicle owners deserve support on use of ethanol blended fuel. The downsides to ethanol use when compared to petrol are well known, including in the US and Brazil, that have led in ethanol blending. But the engineering behind a safe and efficient use of ethanol blended petrol from 5% to 100% is established too. Ethanol blending began as a response to the oil shock of the 1970s. Ethanol has also been pushed as carbon neutral. For India, however, the clinching argument is import substitution and lower price. The government's case is that ethanol blending up to 20% can ensure $10 billion being put in Indian pockets every year. But the benefits will be uneven for farmers, traders, and distillers. India's case hinges on increasing use of sea heavy molasses that are not used for sugar making, using broken rice and otherwise rots in godowns, and on ramping up acreage and productivity of maize that is agriculturally less demanding. These are supposed to set off food security concerns. Once the ethanol economy is fully established, however, it may be tough to prioritize food stocks over the interest of stakeholders in case of shortages and imbalances. Import substitution figures can be dented by import of farm inputs such as fertilizers that have forex outgo of $10 billion. Ethanol has an efficiently penalty. It can affect material durability and corrode fuel handling systems. But global studies have shown that vehicles manufactured as per Euro 2, US Tier 1, and India's BS2 norms in force since 2001 are compatible for ethanol use up to E15. The closed loop fuel control systems mandated to control fuel burning and keeping emissions down in BS2 can help to mitigate efficiency and durability penalties of ethanol, and the upgraded materials in BS2 can help to reduce corrosion. In addition, as per norms, India's vehicles sold since 2023 are committed to handle up to E20, or although questions arise over the impact on the mass of older vehicles. And what is not helping is that in India there is no choice for consumers. Also, any reduction in price claimed earlier does not seem to be reflected in the bunk. Meanwhile, India has adopted two ethanol specific norms and is expected to come up with E27, taking a CUE cue from Brazil. While the government insists that its research indicates no harm, what would really help is full disclosure by automakers on their past brands, even as they are announcing models that can accept any level of ethanol. For instance, some models sold some 5 years ago accepted only E5. Manufacturers should indicate possible mitigation routes for such models, and the government must back insurance claims. Transparency should support policy moves. So guys, this was the passage. I hope you must have understood. एंड इस पैसेज की खास बात ये कि इसमें वर्ड्स आपको अच्छे से मिलने वाले हैं, जम के मिलने वाले हैं.
सो क्यों ना आप एक अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपको मिल रहा है एसुएज। तो भाई, एसुएज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, और एसुएज वर्ड को याद करने का बेहद आसान तरीका है मेरे पास। जैसा कि पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि वर्ड्स को लर्न करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उस वर्ड को किसी नोन वर्ड से ऐड कर लें। तो एसुएज एक बार आप बोल के देखिए, एसुएज। तो जब आप बोलते हैं एसुएज तो आपको कहीं ना कहीं एक नोन वर्ड मिल रहा है, यूसेज। जी हाँ, यूसेज मतलब प्रयोग। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं, वर्ड एंड इट्स मीनिंग एंड इट्स कीवर्ड। तो ये 3 कॉलम्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वर्ड का मीनिंग एंड मीनिंग, देन मीनिंग के बाद हम उसका लर्न करने के लिए कीवर्ड निकाल सकते हैं, वर्ड मीनिंग एंड कीवर्ड। और यहाँ पे हमने वर्ड ले लिया है एसुएज। एसुएज का सबसे पहले जब भी आप वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर याद रखें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको काफी हेल्प मिल जाती है। So you must remember what is the parts of speech of assuage. So this is the verb. And assuage का मतलब है to reduce, किसी चीज का कम करना। एंड भाई, assuage बोलते ही यूसेज वर्ड आ रहा है, तो काफी आसानी से ये वर्ड आपके लिए माइंड में स्टैब्लिश आप कर सकते हैं कि हमें हिंदी वर्ड्स का यूसेज कम करना चाहिए। या एक वर्ड आपने सुना होगा, क्लिशे। क्लिशे का मतलब होता है ऐसे फ्रेजेस जो रिपीटेडली हमारी लैंग्वेज में यूज होते हैं, उसे क्लिशे कहते हैं। तो क्लिशे यूज करने से ऑब्वियसली कलेश बढ़ता है। तो क्लिशे को आप रिलेट कर सकते हैं फ्रेजेस रिपीटेडली यूज्ड। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं तकिया कलाम। तो क्लिशे को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कलेश वर्ड से, कि क्लिशे को क्लच वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, कि जिस तरह से क्लच गाड़ी चलाते समय लोग बार बार यूज करते हैं, वैसे हमें क्लिशे यूज करने लग जाते हैं। सो एक सेंटेंस बन गया, वी शुड एसुएज द यूसेज ऑफ क्लिशे इन आवर कम्युनिकेशन। तो भाई, कैसी लगी ये ट्रिक आपको वर्ड को लर्न करने की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो ऐसे ट्रिक्स हम आपके साथ और भी शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी विद अस, वी विल बी ब्रिंगिंग मोर कंटेंट ऑन दिस। सो लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। सो हियर क्लच को रिलेट करके हमने ये सेंटेंस बनाया है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग क्लच वाला सेंटेंस बना लेते हैं। सम पीपल यूज क्लिशे in their conversation as they use clutch again and again while riding a bike। तो वर्ड्स को लर्न कराने की पूरी गारंटी है अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं, और इस ट्रिक का नाम है मेमोरी लिंकिंग। जी हाँ, वर्ड्स को हम लिंक कर रहे हैं अपनी मेमोरी में। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और भी वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो एसुएजिंग कंसर्न्स, जो चिंताएं थी, कंसर्न यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है, वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कंसर्न एज अ वर्ब इसका यूज़ क्या होगा, और कंसर्न इसका प्लूरल है कंसर्न्स, कंसर्न्स एज अ नाउन इसका यूज़ क्या होगा, ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो एसुएजिंग कंसर्न्स मतलब जो चिंताएं थी उनको कम किया जा रहा है। ऑन इंडिया एंड एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, भारत और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के बारे में ये पैसेज है। व्हीकल ओनर्स डिजर्व सपोर्ट ऑन यूज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। देखिए, यहाँ पे ब्लेंड का मतलब है उसमें मिक्सिंग कर देना, ठीक है। तो ब्लेंडेड वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, BLEND, ब्लेंड। आप लोगों को वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी मतलब इसी कहते हैं मिक्स करना, BLEND, ब्लेंड। ये वर्ब है टू मिक्स समथिंग
और ब्लेंडेड जो आ रहा है वो एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, और उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ, मिस की गई कॉल्स, रिसीव की गई कॉल्स, डायल की गई कॉल्स, तो इनको आप एक शब्द में क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। सो व्हीकल ओनर्स डिजर्व, मतलब वो डिजर्व करते हैं, वो इस लायक हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है ऑन यूज़ ऑफ एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। फ्यूल में एथनॉल अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा, तो व्हीकल ओनर्स को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है। The downsides to ethanol use when compared to petrol are well known. राइट, यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आर वेल नोन, मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को जाना जाता है, प्रेजेंट में है। द डाउन साइड्स टू एथनॉल यूज व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल, मतलब पेट्रोल के कंपैरिजन में जो एथनॉल का जो यूज़ है, उसका जो कम यूज़ होना है वो सभी को अच्छे से पता है, सभी को अच्छे से जाना जाता है, इंक्लूडिंग इन द यूएस एंड ब्राज़ील, यूएस और ब्राज़ील को शामिल करते हुए, दैट हैव लेड इन एथनॉल ब्लेंडिंग, जिन्होंने यूएस और ब्राज़ील ने काफ़ी लीडिंग एग्जाम्पल दिया है, आगे नेतृत्व किया है कि किस तरह से एथनॉल को मिक्स किया जाए पेट्रोल के साथ। बट द इंजीनियरिंग बिहाइंड द सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एथनॉल blended petrol from 5% to 100% is established too। लेकिन जो इंजीनियरिंग है इस पे, इसके सेफ और एफिशिएंट यूज़ की, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की 5% से लेके 100% तक उसको इस्टेब्लिश भी कर लिया गया है, वो इस्टेब्लिश्ड भी है। एथनॉल ब्लेंडिंग बिगेन एज अ रिस्पॉन्स टू ऑयल शॉक ऑफ 1970s। तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से जो ऑयल शॉक था, ठीक है, 1970s का, वो एक तरह से एक रिस्पॉन्स के रूप में है, एक अच्छे सोल्यूशन के रूप में है। एथनॉल हैज़ ऑल्सो बीन पुश्ड एज कार्बन न्यूट्रल, इसको कार्बन न्यूट्रल के रूप में भी पुश किया गया है। ये पैसिव वॉइस में, इसलिए बीन का यूज़ हो रहा है। अगर आपको बीन का यूज़ नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम आपको पर्टिकुलरली बीन का यूज़ दे देंगे, तो आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। फॉर इंडिया, हाउ एवर, the clinching argument is import substitution and lower price। तो भाई यहाँ पे आपका क्लिंचिंग वर्ड आ रहा है और आर्ग्यूमेंट वर्ड आप ऑलरेडी समझते ही हैं, क्लिंचिंग, राइट। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब एक बहस का मुद्दा है, एंड दिस इज क्लिंचिंग, CLINCHING, क्लिंच वर्ड से बना है क्लिंचिंग। तो क्लिंच का मतलब है किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को तय करना, राइट। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट मतलब बहस का एक जो मुद्दा है वो ये है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लोअर प्राइस, ठीक है। भारत के लिए हालांकि सबसे ज़्यादा तय करने वाला मुद्दा ये है, तय करने वाला जो वाद विवाद का पॉइंट है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड लोअर प्राइस, कम प्राइस पे हो और किस तरह से उसे इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूशन को कैसे, सब्स्टिट्यूट को कैसे इंपोर्ट किया जाए, कैसे एथनॉल ब्लेंडिंग की जाए। द गवर्नमेंट्स केस इज दैट एथनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20% कैन इंश्योर $10 billion बीइंग पुट इन इंडियन पॉकेट्स एवरी ईयर। और गवर्नमेंट का मामला ये है कि एथनॉल ब्लेंडिंग 20% तक इंश्योर कर सकती है $10 बिलियन भारतीय पॉकेट में हर साल बचेंगे। बट द बेनिफिट्स विल बी अनइवन फॉर फार्मर्स, लेकिन जो बेनिफिट्स होंगे वो किसानों के लिए थोड़े अनइवन होंगे, ट्रेडर्स और डिस्टिलर्स के लिए थोड़े अनइवन होंगे। इंडियाज केस हिंजेस ऑन इंक्रीजिंग यूज ऑफ सी हैवी मोलेसिस। तो सी हैवी मोलेसिस के बारे में यहाँ बताया गया है, और भारत का जो केस है वो सी हैवी मोलेसिस को बढ़ाने से संबंधित है। और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है हिंज, HING, तो इन वर्ड्स को हम नोट करते जाते हैं। एक वर्ड आपका हो गया क्लिंच और दूसरा वर्ड आपका हिंज। हिंज का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना, राइट। सो दिस इज द वर्ड क्लिंच, दिस इज अ वर्ब टू डिसाइड, तय करना, एंड देयर इज अ वर्ड हिंज। हिंज इज ऑल्सो अ वर्ब दैट मीन्स टू डिपेंड ऑन,
राइट, किसी चीज़ पे निर्भर करना। तो अगर आपको हंचेस वर्ड पता है तो आसानी से ये आप लर्न कर सकते हैं। और क्लिंच वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं क्लिंचेस, ठीक है, क्लच वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। क्लच कब लेना है ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। दैट आर नॉट यूज्ड फॉर शुगर मेकिंग, जो कि शुगर मेकिंग में सी हैवी मोलेसेस यूज नहीं होते हैं। यूजिंग ब्रोकन राइस दैट अदरवाइज रॉट्स एंड गोडाउंस, और इसके लिए हम लोग टूटे हुए राइस को यूज़ कर सकते हैं। दैट अदरवाइज रॉट्स एंड गोडाउंस, जो कि गोडाउंस में रॉट करता है, सड़ता है। एंड ऑन रैम्पिंग अप एसरिच एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज दैट इज एग्रीकल्चरली लेस डिमांडिंग। जो मेज़ की प्रोडक्टिविटी है, मक्की की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। और रॉट वर्ड, रॉटन वर्ड तो आपने पहले से ही सुना होगा, रॉटन एप्पल, ठीक है। तो रॉट का मतलब है सड़ना, किसी चीज़ का वेस्ट होना। और रॉटन एप्पल, राइट। रॉट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू बी वेस्टेड, सड़ना जिसे हिंदी में कहते हैं। एंड रॉटन एप्पल से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी को भी सड़ा ही देता है। एंड ऑन रैम्पिंग अप, रैम्पिंग अप, ठीक है, रैम्प अप वर्ड को भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैम्प अप, रैम्पेज वर्ड अगर आपको आता है तो रैम्प अप वर्ड से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। सो रैम्प अप का मतलब होता है किसी चीज़ का जुटाना। दिस इज कमिंग एज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट इन हिंदी वी कॉल इट जुटाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। एंड रैम्पेज से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। रैम्प अप, रैम्पेज, इसी से बना है रैम्पेजियस। रैम्पेज मतलब उपद्रव, गुस्सा, दैट इज रैम्पेज। एक्यूमुलेट, गुस्से में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। दीज आर सपोज टू सेट ऑफ फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को आसानी से सेट ऑफ कर देते हैं। वंस द एथनॉल इकोनॉमी इज फुली स्टैब्लिश्ड, एक बार एथनॉल इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, हाउ एवर, हालांकि इट मे बी टफ टू प्रायोरिटाइज फूड स्टॉक्स ओवर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन केस ऑफ शॉर्टेज एंड इम्बैलेंसेस। शॉर्टेज और इम्बैलेंसेस के केस में जो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है प्रायोरिटाइज करना, मतलब उसको प्राथमिकता में लाना। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन फिगर्स कैन बी डेंटेड, डेंट का मतलब है उन पे फ़र्क आना, उन पे कमी होना। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन फिगर वो डेंट कर सकता है इम्पोर्ट ऑफ फार्म इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स दैट हैव फॉरेक्स आउटगो ऑफ $10 बिलियन। तो इस तरीके से कहा गया। एथनॉल हैज़ एन एफिशिएंसी पेनल्टी, एथनॉल में एफिशिएंसी को लेकर के थोड़ा से प्रॉब्लम्स हैं, उसकी पेनल्टीज़ हैं। इट कैन अफेक्ट मटेरियल ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कब तक वो चलेगा, ठीक है, कब तक वो स्टैंड करेगा। तो ये मटेरियल ड्यूरेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। कोरोड, कोरोड का मतलब है उसकी जो यूसेज है उसको डाउन करता है, उसके प्रयोग को। कोरोड फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स, और फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम को भी क्या करता है, कोरोड करता है। मीन्स यूसेज, इसके लिए हम लोग शैबी वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो कोरोड इज अ वर्ब दैट मीन्स टू शैबी ड्यू टू यूसेज, घटना जिसे हम लोग कहते हैं, किसी चीज़ का घटना जिसे हम लोग कहते हैं डिटेरियोरेट। अब कोई चीज़ बार बार प्रयोग होगी तो घिसेगी, राइट, तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन, कोरोड। But global studies have shown that vehicles manufactured as per Euro 2, US Tier 1 and India's BS2 norms enforced since 2001 are compatible for ethanol. ये एथेनॉल यूसेज के लिए कंपैटिबल है जो यूरो 2 वाली गाड़ियाँ आती हैं, और यूएस भारत की जो BS2 नॉर्म्स की जो गाड़ियाँ आ रही हैं अप टू E15 तक कंपैटिबल है। द क्लोज्ड लूप फ्यूल कंट्रोल सिस्टम्स मैंडेटेड, यहाँ पे मैंडेट का मतलब होता है ज़रूरी होना। टू कंट्रोल फ्यूल बर्निंग एंड कीपिंग एमिशंस डाउन इन BS2 कैन हेल्प टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी होता है रिड्यूस करना, राइट। सो मिटिगेट वर्ड को आप मिट्टी प्लस गेट से रिड्यूस करना, टू रिड्यूस,
राइट, इसको आप लर्न कर सकते हैं। मिट्टी प्लस गेट, आपने सर्फ एक्सेल वाला ऐड देखा ही होगा जिसमें डॉगी थोड़ा सा मिट्टी हटा के निकल आता है। और इसमें आगे फर्दर दिया है, अपग्रेडेड मटेरियल्स इन BS2 कैन हेल्प टू रिड्यूस कोरोजन, और उस कोरोजन को रिड्यूस करने के लिए वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। इन एडिशन, साथ ही साथ, एज पर नॉर्म्स इंडियाज व्हीकल्स सोल्ड सिंस 2023 आर कमिटेड टू हैंडल अप टू E20 ऑल द क्वेश्चंस अराइज ओवर द इम्पैक्ट ऑन द मास ऑफ ओल्डर व्हीकल्स। पुराने व्हीकल्स की बात अगर किस तरीके से उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी साथ ही साथ एज पर नॉर्म्स ये जब तक 2023 तक हैंड व्हीकल्स बेचे जा रहे थे वो हैंडल कर सकते हैं E20। इसके बाद आगे दिया है, ऑल्सो एनी रिडक्शन इन द प्राइस क्लेम्ड अर्लियर डज नॉट सीम टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बंक, बहुत ज़्यादा बंक में नहीं है। मीनवाइल इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 2 एथनॉल स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेड टू कम अप विद E27। उसी समय भारत ने अडॉप्ट कर लिया है 2 एथनॉल स्पेसिफिक नॉर्म्स, दो नियमों को, और E27 लाने वाला है, टेकिंग क्यू फ्रॉम ब्राज़ील, और इसके लिए ब्राज़ील से वो असिस्टेंस ले रहा है। वाइल द गवर्नमेंट इंसिस्ट दैट इट्स रिसर्च इंडिकेट्स नो हार्म, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि रिसर्चेस में पाया गया है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। What would really help is full disclosure by automakers on their past brands, even as they are announcing models that can accept any level of ethanol. कई सारे ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं जो कि किसी भी लेवल का एथनॉल मिक्सिंग को एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस सम मॉडल्स सोल्ड सम 5 years ago accepted only E5। एग्जाम्पल के लिए कुछ मॉडल्स जो 5 साल पहले तक बेचे जा रहे थे वो E5 ही एक्सेप्ट कर रहे थे। मैन्युफैक्चरर्स शुड इंडिकेट पॉसिबल मिटिगेशन रूट्स फॉर सच मॉडल्स, और मैन्युफैक्चरर्स को इस तरीके का जो मिटिगेशन है ऐसे मॉडल्स का वो इंडिकेट करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट मस्ट बैक इंश्योरेंस क्लेम्स, ट्रांसपेरेंसी शुड सपोर्ट प्राइवेसी मूव्स, और प्राइवेसी मूव्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पैसेज का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, एंड लेट मी टेल यू वी आर अवेलेबल ऑन Telegram as well with the same name, Best English Speaking Course. And this time we have a special training program with a lucrative offer. On the occasion of Independence Day, we have a program in which you get language proficiency, verbal ability for company selection test, mock interviews, group discussion, and presentation mastery. All these important modules you just get at the amount of 10K. So limited time offer है, so you may get back to us on the same thing, how you can be the part of it, and you can gain, you can earn a certificate also. तो certificate course है ये पूरा, और you can get access to basic grammar, vocabulary building, pronunciation and accent training, and you get the certificate. And along with that you also get mastery on presentations, mock interviews, and company selection tests. So for more details you can call at this number. Take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat.